Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, listeners will also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106, and 2371-7117. For listeners who will be calling us from outside Delhi, you will have to prefix Delhi STD code 011. And I'm Anupha Rohatgi, and with me today in the program is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी या विशेष स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106। हमारा तीसरा नंबर है 23717117 और हमारे साथ सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल जी। यामिनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है अनुभा। थैंक यू निखिल। Domestic stock indices closed around 1.5% up. Sensex finishes above the 54,500 mark. Nifty settles near the 16,250 level. Exports of agricultural and processed food products rise 14% in first 3 months of current fiscal, and rupee weakens to 79 rupees and 98 paisa against the US dollar. घरेलू शेयर बाजार आज करीब 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 54,500 अंक के ऊपर और निफ्टी 16,250 के स्तर के आसपास बंद हुआ। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात 14% बढ़ा और रुपया गिरावट के साथ 79 रुपये 98 पैसे प्रति डॉलर। वैश्विक शेयर बाजारों में आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में 1.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 54,500 अंक के ऊपर और निफ्टी 16,250 के स्तर के ऊपर पहुंचकर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 1.41% यानी कि 760 अंक की वृद्धि के साथ 54,521 पर आकर रुका और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.43% यानी कि 229 अंक की बढ़ोतरी के साथ 16,279 पर बंद हुआ। विस्तृत बाजार की बात की जाए तो बीएसई मिड कैप सूचकांक आज 1.49% बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में आज 1.39% की वृद्धि दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today climbed more than 1%. Both stock indices gained amid positive global share markets. The Sensex closed above the 54,500 mark, while the Nifty finished above the 16,250 level. The Sensex surged 760 points or 1.41% to finish at 54,521. The Nifty rose 229 points or 1.43% to end at 16,279. In the broader market at the BSE, the mid-cap climbed 1.49%, while the small-cap index ended 1.39% up. In the Sensex pack, 23 companies posted gains, while 7 logged losses. IndusInd Bank was the top gainer as it climbed 4.4%. Infosys added 4.2%. Tech Mahindra rose 3.5%, and Bajaj Finserv ended 3.4% up. On the other hand, Dr. Reddy's Lab tumbled 1.7%, HDFC declined 1.2%, Mahindra & Mahindra plunged 0.9%, and Maruti ended 0.8% down. In sectoral indices at the BSE, 18 sectors gained except FMCG sector, which lost 0.4%. IT sector climbed 3.1% and tech sector gained 3%. Metal index rose 2.7% and BankX sector surged 2.1%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,302 companies gained while 1,152 fell. Shares of 158 companies remained unchanged. And we already have been joined by our first caller of the day, Anupam Mishra from Greater Noida. Anupam, welcome to the program. Please ask your question. Yeah, madam, my first question is that only 10 or 11% of the people in India are paying tax. So how government, what are the other earnings government have
apart from tax, and why don't they club more people in the tax structure? Now, my second question is that when government is deducting income tax from the people, then again, why there are a lot of taxes they are charging, like road tax, GST, and multiple taxes are there we are paying. So why there is no single tax structure in the government? Well, when we talk about taxes, taxes can be applied on the incomes as well as on expenditures, and thereby they are also defined as direct and indirect taxes. So what you pay as income tax is your direct taxes. Also, the government imposes taxes on companies, so which are called corporate taxes. Besides that, there is the indirect tax, which you know as GST. Earlier, there were excise duties, sales tax, and a large number of other taxes, VAT and others that were there. The government sources its revenues through taxes, also through non-tax revenues, which may be through the public sector undertakings which earn for them and the dividends that they receive. Also from other administrative costs like the payments that you make as fines, or you actually make payments to courts or other places where the administrative services are provided by the government. और इस बीच हमारे साथ ठाणे से हमारे कॉलर हैं गुरुनाथ। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, आपका प्रश्न पूछिए। हेमिनी मैम को भी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम, मेरा सवाल है, मैडम ये जो अभी जीएसटी का जो इसमें जो जीवनावश्यक वस्तु के ऊपर जो उन्होंने जो 5% जो बढ़ोतरी करने की बात की है, तो मैडम ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स पे क्या इसका इम्पैक्ट करेगा, और जो इन्फ्लेशन जो बढ़ने का कितना खतरा है, और पहले ही महंगाई बढ़ी हुई है, तो मैडम इसका क्या असर होने वाला है, जो जीवनावश्यक वस्तुओं का जो भाव बढ़ेगा? थैंक यू मैम। जी देखिए, यूजुअली ट्रांसफर कर दिया जाता है जो भी टैक्स इम्पोज किया जाता है, तो ये कंज्यूमर को ही पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल रिटेल प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी, जिसका सीधा असर आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे भी पड़ेगा। पर माना जा रहा है जो इन्फ्लेशन है वो अभी ज्यादातर इम्पोर्टेड है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी हद तक हाई लेवल पे चल रही थी, 139 पर डॉलर भी पहुंच चुकी है, और उसकी वजह से जो है महंगाई का दर काफी बढ़ता जा रहा था। कोशिश यही की जाएगी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जो है कंट्रोल किया जाए, जिसके लिए काफी स्टेप्स भी उठाए गए हैं। जैसे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे अभी हाल ही में, और कोशिश ये भी की थी जो सरकार है उसने कि वो टैक्सेस कम करे पेट्रोल और डीजल पे। तो इसके माध्यम से और कुछ माध्यम से जो अभी एमपीसी आई थी उसके माध्यम से कोशिश की गई है कि लिक्विडिटी भी कम रखी जाए, उनसे कोशिश करके महंगाई के दर को सीमित रखना की प्रयत्न रहेगा। And now we have the next caller from Delhi, Mr. Bharat Bhushan. Mr. Bhushan, welcome to the program. Please ask your question. जी नमस्कार सभी को। नमस्कार। यामिनी मैडम, मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा सरकार के द्वारा, और दूसरा कि जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट बिल में क्या सोना को इम्पोर्ट कम नहीं किया जा सकता, जिससे हमारी जो विदेशी हमारी मुद्रा जो बाहर जाती है और हमारी मुद्रा हमारे देश में ही रहे? धन्यवाद। जी, आपका पहला सवाल है करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर के। इसको प्रयत्न को किया जाता है कि कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए और सारे इंसेंटिव्स दिए जाएं जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़े। जैसे काफी कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा हो या फिर और सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स के द्वारा हो। कोशिश ये भी की गई है कि एक्सपोर्ट जोन्स बनाए जाएं, वहां पे उनको क्रेडिट अवेलेबल कराया जाए। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का भी एक प्लान लाया गया है जिससे कोशिश की गई है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। स्किलिंग और मुद्रा योजना के द्वारा भी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश की है। वैल्यू एडिशंस में भी बढ़ावा देने की कोशिश की है। जैसे आपने अभी न्यूज सुनी होगी कि प्रोसेस्ड फूड आइटम्स और एग्रीकल्चर आइटम्स के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। कोशिश ये भी की जाती है कि इंपोर्ट्स को कम किया जाए जिसमें टैरिफ्स लगाए जाते हैं, या जहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन खतरे में हो तो उसके ऊपर कुछ और ड्यूटीज लगाई जाती हैं। तो ये कुछ माध्यम होते हैं। जहां तक इंपोर्ट ऑफ गोल्ड है वहां पर गोल्ड के ऊपर अगेन टैक्सेस लगाए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि गोल्ड के कंजम्पशन को कम किया जाए। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से पवन है हमारे साथ में। हेलो। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद, आपका प्रश्न पूछिए।
जी सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि जैसे ये सरकारें आजकल जो है वो राज्य सरकारें जैसे कर रही हैं, इसमें बिजली जो है वो फ्री दी जा रही है, पानी फ्री दिया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री दी जा रही है, तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा जो किसान विकास पत्र है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इनमें दोनों में जो है वो लाभदायक कौन है? जी देखिए, जहाँ तक बिजली या कुछ और सुविधाएं मुफ्त में प्रदान करने की बात करी जा रही है, उसका सीधा असर आपके फिस्कल डेफिसिट पे पड़ता है, सरकार के खर्चे पे पड़ता है। और जब वो खर्चा बढ़ता है और उसके साथ कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं होता, तो सरकार को करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है या बोरो करनी पड़ती है। जब वो प्रिंट करती है तो महंगाई का दर बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन होता है, और जब वो बोरो करती है तब भी सरकार के ऊपर खर्च ज्यादा बढ़ जाता है, और वो कंट्री के लिए अगर बहुत ज्यादा डेट होता है तो वो उसके लिए रिस्की होता है। कोशिश ये की जाती है कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उन तक ही जो है फ्री की चीजें रखी जाएं, ताकि जो वनरेबल ग्रुप्स हैं उनको फायदा पहुंचे। जहां तक आपने सर्टिफिकेट्स की बात की, किसान विकास पत्र और एनएसएस की, दोनों ही सर्टिफिकेट्स अपने में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और जो एक अच्छा रिटर्न देते हैं, सिक्योर रिटर्न देते हैं। And the next caller is Mr. Hasmukh from Mumbai. Mr. Hasmukh, welcome to the program. Please ask your question. गुड इवनिंग मास्टर मंत्रा। मेरे दो प्रश्न है मैडम। एक तो जो इन्फ्लेशन के लिए जो गवर्नमेंट ने कंट्रोल के जो स्टेप्स उठाए हैं, आपको लगता है कि और कितना खराब हो सकता है, यानी इन्फ्लेशन कितना बढ़ सकता है? क्वेश्चन नंबर 2, आरबीआई जो है हमारी, लगता है कि उन्होंने जो कुछ स्टेप्स लिए हैं वो सफिशिएंट है या और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, तो कितने बढ़ सकते हैं? थैंक यू। जी देखिए, आरबीआई काफी नजदीक से देख रही है और कोशिश कर रही है कि इन्फ्लेशन को सीमित लाए, और लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो एक काफी हद तक ग्लोबल फिनोमेना है, क्योंकि ये क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से एमिनेट हो रहा है, और क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी हद तक $139 पर बैरल पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से हमारे पास भी महंगाई का दर बढ़ रहा था। जो इन्फ्लेशन का एक और सोर्स है वो रुपए की डेप्रिसिएशन है, जिसकी वजह से इम्पोर्टेड आइटम्स जो हमारे कुछ जरूरत का सामान है, जैसे ऑयल ही हम अगर कहें, तो वो एक महंगी दर पे हमें इम्पोर्ट होता है। आरबीआई ने कोशिश की है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएं, ताकि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है फेडरल रिजर्व बैंक का यूएस के और जो हमारा रेट है उसकी दरों में जो डिफरेंस है वो कम हो सके, ताकि जो एफआईआईज हैं वो बाहर की तरफ फ्लो ना करें। ये भी माना जाता है कि कोशिश की जाती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, ताकि जो है जो लिक्विडिटी है वो भी मार्केट से सक की जाए, ताकि वो इन्फ्लेशन या महंगाई दर को बढ़ाए ना। जहां तक आरबीआई की बात है, उसने अपने एमपीसी में काफी हद तक कोशिश की है लिक्विडिटी को रिड्यूस करने की, चाहे वो इंटरेस्ट रेट के दर को बढ़ा करके हो या और कदम उठा करके हो। लेकिन ये कहना कि वो पूरी तरीके से महंगाई को जो है टेम कर पाएगी वो मुश्किल है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है। And we have the next caller from Delhi, Anil Ahuja. But before we take Mr. Ahuja's call, let's hear about how the rupee behaved today from Nikhil. जी हाँ, अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर रहा और ये 79 रुपए 98 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.45% की गिरावट से 107.57 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। अनिल जी, फोन लाइन पर आप हैं। हेलो। हाँ जी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका सवाल पूछिए। गुड इवनिंग टीम। मेरा एक ही सिंपल प्रश्न है कि जो पीएफ है हमारा प्रोविडेंट फंड, अब आगे से शायद 2.5 लाख से ऊपर जो उसके ऊपर डिपॉजिट है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो इज इट फेयर? मतलब वो तो हमारे पार्ट ऑफ सैलरी है, पहले ही हम टैक्स दे के उसको सेव कर रहे हैं, अब उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है, तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? प्लीज। जी, कोशिश की गई है कि पीएफ को टैक्स के दायरे से दूर रखा जाए, पर कुछ लोग हैं जिनके पीएफ की कॉन्ट्रीब्यूशंस काफी ज्यादा हैं और जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट है उनका वो काफी हाई है, और वो उस दर की वजह से जो 2.5 लाख पर एनम है, अगर इंटरेस्ट कमाते हैं तो उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स पे करें, क्योंकि किसी भी तरीके से सरकार जो है, जो रिच लोग होते हैं या जो ज्यादा
टैक्स फ्री इनकम कमाते हैं उनको जो है इंसेंटिवाइज नहीं करना चाहती कि वो पीएफ में अपना पैसा बढ़ाएं। एंड नाउ वी हैव जितेंद्र फ्रॉम खजुराहो। जितेंद्र, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछें। जी मैम नमस्ते, और यामिनी मैम को भी नमस्ते। जी नमस्ते। दो क्वेश्चन है मैम। पहला क्वेश्चन है कि हिंदू ग्रोथ रेट कंसेप्ट क्या है और स्वेप्ट करेंसी क्या है? थैंक यू। जी, हिंदू ग्रोथ रेट कंसेप्ट है कि जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से किस स्तर पे चल रही है, और स्विफ्ट कोई करेंसी नहीं है। स्विफ्ट एक मैकेनिज्म है जिससे आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश में एक कोड के थ्रू, जिसे हम स्विफ्ट कोड कहते हैं, जो हर एक बैंक को मिलता है इंटरनेशनल ट्रांसफर्स करने के लिए। And next we have online our very regular caller, Mr. Atanu Saha from Kolkata. Looks like the line got disconnected, so let us continue with the news. So this news is coming from export front. Exports of agricultural and processed food products rose by 14% in the first 3 months of the current fiscal year compared to the corresponding period of 2021-22. The Commerce and Industry Ministry said the overall export has increased to $5,987 million in April to June this year, from $5,256 million over the same period of the last fiscal. The exports of fresh fruits and vegetables registered 8.6% growth, while processed food products like cereals and miscellaneous processed items reported an impressive growth of 36.4%. The ministry said rice exports witnessed a growth of 13%, while the export of meat, dairy and poultry products increased by 9.5%. और इस बीच अतानु साहब हमारे साथ कोलकाता से फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ नमस्कार, अतानु साहा फ्रॉम कोलकाता सर। Thanks to everybody, to entire team. Sir, my first question is, what is Mudra Loan and how is it work, and what is on which please procedure to increase our labor intensive agricultural division, sir? Thank you. जी, मुद्रा योजना एक ऐसी योजना है जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन प्रदान करने की योजना है, और कोशिश की जाती है कि इनको लोन एक सहूलियत के साथ दिया जाए, और ये सरकार की काफी हद तक योजना रही है एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए, जो खासतौर पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए कोशिश यही की जा रही है कि जो एमएसएमई है उसको काफी हद तक सपोर्ट किया जाए। अभी डब्ल्यूटीओ के अंदर मानना जाता है कि एमएसएमई को खोलने की बात की जा रही है हर एक देश की, पर इंडिया ने ये सेक्टर नहीं खोला है क्योंकि मानता है कि हमारा एमएसएमई इंटरनेशनल लेवल के एमएसएमई के मुकाबले में नहीं है और उसको काफी हद तक बढ़ावा देने की जरूरत है। कोशिश की जाती है कि एमएसएमईज के साथ साथ जो ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट देते हैं उनको किसी भी तरीके से क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, और आत्मनिर्भर अभियान के द्वारा भी उनको कोविड के दौरान भी सपोर्ट प्रोवाइड की गई थी। ट्रेडर्स को भी एमएसएमई यूनिट में लाया गया था कोशिश करने के लिए ताकि उनको एमएसएमई के इकोसिस्टम का फायदा पहुंचे। और आशीष है दिल्ली से फोन लाइन पर। हेलो। या गुड इवनिंग टू एवरीवन। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे फेड रेट अभी फ्यूचर फोरकास्ट है दैट दे कैन फर्दर रिड्यूस इट, तो अभी क्या करे आरबीआई, क्या इसको काउंटर बैलेंसिंग के लिए रेट हाइक करेगी या वी में से अनदर लो नाउ? अभी हम अच्छा देख रहे हैं, ऊपर जा रही है, मगर जैसा अगर आप ग्राफ देखें 6 महीने का, इट ऑलवेज टच द लोअर लोज अगेन, तो मे बी इट विल अगेन गो बैक टू 51, 52 और we're going to stabilize or worst is over? जी देखिए, फेडरल रिजर्व बैंक का जो कंटिन्यूस स्टैंस रहा है वो रहा है रेट हाइक करने का, क्योंकि वो काफी हद तक मानती है कि इन्फ्लेशन जो 40 ईयर हाई पर है और अभी 9.1% आया है, जबकि उनका एस्टिमेटेड था 8.8%, उससे कहीं ज्यादा है, और जिसकी वजह से वो जो है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की तरफ कदम उठा सकते हैं। लेकिन वो एग्रेसिव स्टैंस हाल ही में थोड़ा सा कम नजर आया है, क्योंकि काफी लोग रिसेशन की भी बात कर रहे हैं, जो पिछले उनके क्वार्टर में भी नेगेटिव ग्रोथ थी, और अगर इस क्वार्टर में भी होती है तो वो एक टेक्निकल रिसेशन में आ जाते हैं। माना जाता है कि जो फेडरल रेट का रिजर्व का रेट है और जो भारतीय रेट है,
अगर उसका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल काफी ज्यादा बढ़ जाए तो जो आउटफ्लोज हैं वो भारत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इसलिए जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है फ्लोज का, खासतौर पे बाहरी फ्लोज का, उसके लिए जरूरी है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। इंटरेस्ट रेट्स इसलिए भी बढ़ाने जरूरी हो जाते हैं क्योंकि वो लिक्विडिटी सक करते हैं और जो इन्फ्लेशन है उसकी दर को काबू में रखते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि आरबीआई अकोमोडेटिव स्टैंस रखेगा, पर हो सकता है न्यूट्रल पे जाए अगर फेड काफी एग्रेसिव रहता है। And the next caller is from Chennai, Mr. Sheshnarayan. Mr. Sheshnarayan, welcome to the program. Please ask your question. Thank you, madam. Greetings to Market Mantra team. My question is on the tax revenues from the oil. Because when the budget is formed, because they would have assumed a certain rate for the oil and then would have created a tax revenue coming out of it, right? So they would have budgeted. But with the increased oil price, isn't the government getting a windfall from a tax revenue on the oil as well? And why don't they actually publish in terms of what is the difference that they got from the budgetary estimates versus actual, madam? When we talk about fiscal deficits, the fiscal deficits are still going to be about 6.8%. The revenues which they have been estimating have been at $75. They do estimate that because of the windfall which will come from the increase in the rates will be consumed in the other fiscal requirements which the government has, especially to deal with the pandemic, as there were fiscal deficits of about 9.5% in the previous year, and the vaccination which is subsidized and the other welfare schemes which are subsidized continue to demand more expenditure. However, when we talk about the windfall, one must also remember that the government has reduced the taxes on the petrol and diesel, trying to safeguard the common man from the brunt of inflation, which has been a major concern for all authorities. और आगे बढ़ने से पहले एक बार एशियाई बाजार पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं के बीच निवेशकों का रुझान आज सकारात्मक रहा और एशिया प्रशांत क्षेत्र के अधिकतर शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। हांगकांग का हैंग सेंग आज 2.7% ऊपर आ गया और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.9% की वृद्धि हुई। वहीं चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.6% के लाभ में रहा। दूसरी तरफ सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.7% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि जापान के निक्केई में आज अवकाश के कारण कारोबार नहीं हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान लाभ में चल रहे थे। लंदन के फुट्सी 1.3% की बढ़ोतरी के साथ रहे। फ्रांस का कैक 1.6% और जर्मनी का डेक्स 1.4% ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहे थे। और हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं थाने से साई नाथ अय्यर। हेलो हेलो सर। यस सर, आपका प्रश्न पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है जो शेयर होल्डर है, वो शेयर होल्डर पे थोड़े कई साल से शेयर होल्डर को देना पड़ता है और उससे बचने के लिए TDS 15H नहीं तो 15G फॉर्म भरना पड़ता है। पहले तो कंपनी पेड करती थी तो शेयर होल्डर के ऊपर नहीं था। ये वापस कंपनी के ऊपर कंपनी क्यों नहीं बेयर कर सकती है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्यों शेयर होल्डर पर डाला जाता है? इसका समाधान कीजिए। जी देखिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी पे करती थी और जब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी, माना जाता है कि ये डबल टैक्सेशन हो जाता है कंपनी पे, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है अपनी इनकम्स के ऊपर, और जब वो उसे अपने शेयर होल्डर्स को बांट रही है तब भी वो अगर टैक्स पे करती है तो वो एक डबल टैक्सेशन हो जाता है। देखा गया है कि आमतौर पे काफी लोग जो काफी संख्या में कंपनीज के शेयर्स होल्ड करते हैं, उनके पास जब वो डिविडेंड जाती है वो हायर टैक्स ब्रैकेट में रहते हैं, और क्योंकि डिविडेंड टैक्स की जो टैक्स रेट था वो कम था, तो जब वो 30% के मुकाबले माना गया तो देखा गया कि टैक्स रेवेन्यू लॉस होता है। तो इसलिए इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर वो टैक्स लगा करके कोशिश की गई कि टैक्स रेवेन्यूज को भी बढ़ाया जाए और डबल टैक्सेशन भी नहीं की जाए। And the next caller is Pankaj from Mumbai. Welcome to the program. Pankaj, please ask your question. Hi, good evening. I want to know, is hiking interest rate the only way to deal with inflation, because it impacts the overall growth of companies and even it becomes difficult
for people as well, higher interest rates in some ways. The other question is, as investors, if we have a 2-3 year long period, is this a good time to invest because the markets are still not certain? I mean, we don't know the direction yet, whether it can go further or it can, fall from these levels. It has been the same since the past 6-8 months or so. Thank you. Interest rate hiking is one of the ways of countering inflation. There are monetary measures. Within the monetary measures, one of the measures is interest rate. Besides that, you can also increase CRR, you can increase SLR. Also, you can take certain measures like increasing risk weightages to the assets, which can reduce the overall inflation. Further, there can be limitations put as to where you can invest and how you can invest or what credit you can make available. Another thing, there can be a possibility that when you are trying to reduce inflation, there can be fiscal measures that can be taken by reducing taxes. As for investors, one needs to understand that the macroeconomic fundamentals of the economy are strong. The growth rates, despite being revalued, are still higher than 7%, and the overall economic reform process is strong enough to push growth to a higher level for the economy. So investing for 2 to 3 years will be a good thing, as well as the yield curves are positive for people to invest, so which does give a good confidence for that. And before we move on, some news from the commodities. Oil prices today extended gains amid weaker dollar and tight supplies that offset concerns about recession and the prospect of widespread COVID-19 lockdowns in China, again reducing fuel demand. The crude prices gained 2.5%. Brent crude was trading at $103.70 per barrel, while WTI crude prices were at $99.80 per barrel. हमारे साथ गाजियाबाद से गौरव है। गौरव, जल्दी से आपका प्रश्न पूछिए। हेलो गौरव। हेलो जी, जल्दी से आपका प्रश्न पूछिए। Yeah, has the market bottomed out in this current scenario of dropping or falling interest rates and inflation control measures which all the major banks are taking? Has the market bottomed out in this context? Thank you. जी. It is difficult to say because it's a very volatile market, and the Fed still can take an aggressive step in increasing the interest rates, which can affect the markets. और सोने पर नजर डालते हैं तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना आज 290 रुपए की बढ़त के साथ 50,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी 415 रुपए ऊपर चढ़कर 56,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,710.80 प्रति औंस के स्तर पर, जबकि चांदी बढ़ोतरी के साथ $18.70 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। And here we would like to say thank you to our expert, Yamini Agarwal. But before we do that, Yamini, we see that we were talking about, earlier that the oil prices are, again getting very volatile. So what do you see? Do you see that the inflation, now that the oil prices have come down below $100, do you think it will again help in curbing the inflation? Yes, because the oil prices are one important factor which is affecting inflation and having a pressure on the entire world. And what about gold prices? Today we saw that, now with US Fed likely to increase, there's likely to be an increase in interest rates. How would that affect gold prices? Well, gold continues to be a safe haven, so people will invest whenever there are uncertainties. जी, यामिनी जी, हमसे बात करने के लिए, हमारे श्रोताओं का प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, चलने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर से। घरेलू शेयर बाजार आज करीब 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 54,500 अंक के ऊपर और निफ्टी 16,250 के स्तर के आसपास बंद हुआ। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात 14% बढ़ा और रुपया गिरावट के साथ 79 रुपए 98 पैसे प्रति डॉलर। And with that, we end this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Namaskar. Namaskar.